Good morning, everyone. Myself, Vikas, Assistant Professor in Chemistry in Pandit Chiranjilal Sarma Government College, Karnal. So, our topic is Chemistry of D Block Element, and this topic is the BSc second year, third sem in Organic Chemistry topic, Chemistry of D Block Element. There are 30 elements in the D block elements in the periodic table, and all of the D block elements have a wide number of applications. There are some examples like cadmiums have uses in the battery, and cobalt is used in the uh, fighter jet, and tungsten have application in the medicinal equipments, and chromium in the vehicle alloys, and iron have application in these are iron rods, and these are wide number of application in making structure of any building. And platinum is also called white gold, sorry, platinum is also called white gold, and this is an ring that is used for jewelry purpose. So there are wide number of application of chemistry of d block element. Some are industrial applications, some have daily use applications, and some are medicinal applications. Other than these applications, the d block elements are have a wide number of reagents. Some have oxidizing agent, some have reducing agent, and these reagents are used in organic synthesis for the synthesis of a wide number of organic molecules, or we can say that for the synthesis of medicinal drugs. In this chapter, chemistry of deep block elements, we study the following topics: definition of transition elements, position in the periodic table of the d block element, and general characteristic properties of d block element, and what is their oxidation state, and what is the magnetic and spectral properties of d block element, and what type of different oxidation states shown by the d block elements, and what is their stability. And for the stability of d block elements, we use two diagram. First one is the Latimer diagram, and second one is the Frost diagram, and the stereochemistry of transition complexes formed by d block elements, and the comparison of the properties of 3D element with 4D and 5D elements with reference to only their atomic ionic radii. And last topic is the structure and properties of some compound: titanium dioxide, vanadium chloride, ferric chloride, and this one is the cuprous chloride, and this one is the nickel tetracarbonate. All of these topics are included in the syllabus of Kurukshetra University, and these all topics comes under the chemistry of d block element. So before starting these topics, first of all we should know what is the d block elements, and how many d block element are in their periodic table, and what is the position of the d block element in the periodic table. So this is the periodic table. This one is the these two are left. On the left hand side are s block element, and this one is the p block element, and this one are d block element. This series, and this one, and this one, this series is called first transition series, and this series is called second transition series, and this series is called third transition series, and this one last one is the fourth transition series. These two series, this one is the yellow one, and this one is the reddish one. 57 to 71 and 89 to 103, this is the atomic number for two series: lanthanoid series and actinoid series. These two series are called inner transition element, because this is the transition element or d block element, and these two series elements are lie in between, or we can not in between. These two series elements lie inside the d block elements or inside the transition elements. So these two series elements are called inner transition element, and these are called transition element. And इन द पीरियोडिक टेबल अगर हम बात करें, इस सीरीज को हम 3D ट्रांजिशन सीरीज बोलते हैं. दिस वन सीरीज इज 4D ट्रांजिशन सीरीज, दिस वन इज 5D, एंड दिस वन इज द 6D. हम इसको 3D ट्रांजिशन सीरीज इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वैलेंस सेल, जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फिल करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मीन्स इसका नंबर एटॉमिक नंबर 21 है, तो मीन्स दिस कैडियम एलिमेंट्स हैव 21 इलेक्ट्रॉन, and and these 21 electrons have their position in the particular orbitals like s orbital, p orbital and d orbital. So अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं स्केडियम की, मैं ओनली सिर्फ आउटर सेल वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख रहा हूँ. दिस वन इज द आर्गन, in the respect of organ,
organ have 18 electron. So the valence shell electronic configuration is 3d1 4s2. So last electron enter in the 3d1 orbital. So this series is called 3d series, and the next one is the down the group. अगर हम बात करें, this series is the 4d series, and this one series is the 5d series, and this one is the 6d series because the last electron enter in the 6d orbital. These all called d block elements. These are also d block element with their atomic number 44.956. This one is the only out of these all elements, only this one is tactinium. Tactinium is a radioactive element. This size is this symbol is used for tactinium. This symbol is used for radioactive element. अगर हम डेफिनेशन की बात करें और हम सिंपल इंट्रोडक्शन की बात करें कि हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट जनरली हम उन एलिमेंट्स को बोलते हैं जिसमें अगर वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन है, एस ऑर्बिटल में जो वैलेंस सेल है, जो एस ऑर्बिटल है हमारे पास, उसमें जनरली इलेक्ट्रॉन 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। लेकिन जो पेनल्टीमेट सेल है, जो इनर वैलेंस सेल के जो इनर साइड जो सेल है, अगर उसमें इलेक्ट्रॉन 1 to 10 है, अगर एंट्री ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन इन एन एटम वो डी ऑर्बिटल में जा रहा है, तो हम उसको, जितने भी एलिमेंट इस तरह के होते हैं, हम सबको डी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में जा रहा है, दिस वन इज द पेनल्टीमेट सेल एंड दिस वन इज द पी ऑर्बिटल हियर एंटी पेनल्टीमेट सेल। एज जैसे कि हमने लास्ट स्लाइड में देखा है कि जो हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट है वो 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज एंड 6D सीरीज, हम इनको 4 ब्लॉक में डिवाइड करते हैं और 4 सीरीज में डिवाइड करते हैं। 3D सीरीज को हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज बोलते हैं। This one is the 3D series and this one that one is the first transition series. This one is second and this one is the third and this one is the fourth transition series. So next question arises, why or the D block element or called transition element? हम D block element को transition element क्यों बोलते हैं? Transition means change, क्योंकि जो D block element है, जैसे कि हमने periodic table में अभी पीछे जो सेकंड स्लाइड थी, दिस वन स्लाइड, जैसे कि हमने सेकंड स्लाइड में देखा, दीज आर ऑल एस ब्लॉक एलिमेंट एंड दीज ऑल आर पी ब्लॉक एलिमेंट। दीज एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर ऑल इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, दीज आर least electropositive element, or we can say these all are electronegative elements. So there is a complete change of electronegativity और electropositivity हम कह सकते हैं। यहाँ पे क्या electropositivity का complete change है higher to lower, and all of these electron are called transition element. This element are called ट्रांजिशन एलिमेंट बिकॉज जो एक रिप्रेजेंट करते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स की हेल्प, डी ब्लॉक एलिमेंट एक रिप्रेजेंटेशन है कि वहाँ पे कंप्लीट चेंज फ्रॉम मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एस ब्लॉक एलिमेंट्स टू लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव पी ब्लॉक एलिमेंट्स। And D block elements, those elements which are partially filled. This is the definition of D block element. Generally partially filled, हमारे पास जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो डी ऑर्बिटल में जाना चाहिए, और हम कह सकते हैं लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब सेल में जाना चाहिए, या उसकी एलिमेंट्री फॉर्म में हो या उसकी वो कॉमनली को करेंगे उसकी कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट हो। एलिमेंट्री फॉर्म मीन्स दिस डज नॉट हैव एनी चार्ज। दिस वन इज द सपोज करो दिस वन इज द कॉपर, हम कह सकते हैं कि कॉपर अगर मैं इसकी बात करूँ, क्या उसकी एलिमेंट्री फॉर्म है, एंड दिस वन इज देयर मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, और वी कैन से दिस इज देयर आयनिक फॉर्म 3D9 एंड दिस वन इज द 3D10। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अगर हम बात करें, जिंक, कैडमियम, मरकरी उनको 3D सीरीज में नहीं होने चाहिए, वी कैन से दैट जो जिंक, कैडमियम, मरकरी है उनको 3D ब्लॉक, जो हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट है उनमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या कंप्लीटली फिल्ड है, और हमने बात की है कि वो पार्सली फिल्ड होना चाहिए। अगर वो कंप्लीटली फिल्ड है तो हमारा वो उसमें नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी क्या है कि जो जिंक, कैडमियम, मरकरी है, जो इनकी प्रॉपर्टी है वो ऑलमोस्ट सेम है जो हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट है। स्कैडियम टू कॉपर अगर मैं बात करता हूँ तो हमारे पास जितने भी एलिमेंट हैं जो उनकी प्रॉपर्टी है वो ऑलमोस्ट सेम है। इसलिए जो हमारे पास जो ये दूसरे एलिमेंट हैं जिंक, कैडमियम, मरकरी, इनको भी हम डी ब्लॉक एलिमेंट में कंसीडर करते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक, जनरल फीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एटम, कि जो हमारे पास एटम है हम उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को कैसे ऐड करते हैं। मैं अगर सबसे पहले हाइड्रोजन के एग्जांपल की बात करूँ तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 1। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है 1, एंड इलेक्ट्रॉन
अगर इसकी वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक की बात करें 1s1 एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन है। और जो एनर्जी होती है जो ऑर्बिटल्स की, जैसे 1s 2s 2p 3s 3p 3d, जो डिफरेंट ऑर्बिटल है, जो इनकी एनर्जी वेरी करती है वो वेरी करती है विद द क्वांटम नंबर। जो एनर्जी ऑर्बिटल की वेरी करती है वो वेरी करती है जैसे इसका क्वांटम नंबर होता है उस पर चेंज करती है। या हम कह सकते हैं कि जो एनर्जी होती है जो एरियस ऑर्बिटल की, वो जो डिपेंड करती है उसके क्वांटम नंबर पे डिपेंड करती है। लेकिन जब हम हाइड्रोजन के लिए बात करते हैं जो क्वांटम नंबर की वैल्यू है वो सेम है। जैसे 1s के लिए 1 है, 2s के लिए यहाँ पे 2, दिस वन इज द 3, दिस वन इज द 4। और एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वहाँ पे सिर्फ एक ही ऑर्बिटल है 1s1। 2s 2p 3s 3p 3d ये सब तो वहाँ पे है ही नहीं। अगर है तो उनमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो सब एम्प्टी है, वहाँ पे कोई भी फील्ड नहीं है। तो क्या है कि उस केस में क्या है कि जो वहाँ पे कोई भी किसी का उसके साथ कोई इंटरेक्शन नहीं है, इलेक्ट्रॉन इनर ऑर्बिटल में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं प्रेजेंट है जिसकी वजह से उसको कोई रिपल्सन हो या अट्रैक्शन हो, तो जो ऑर्बिटल की एनर्जी रहती है वो ऑलमोस्ट सबकी सेम रहती है। 3s 3p 3d जो यहाँ पे एक लाइन में दिखाया गया है, इसका मतलब है कि इन सब की एनर्जी क्या है, सेम है। और अगर हम स्क्रीनिंग इफेक्ट की बात करें, दिस वन इज द न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज एंड दिस वन इज द आउटर वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन एज 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f। ये हमारे पास जो डिफरेंट ऑर्बिटल इन सब की एनर्जी सेम है। तो जो 1s इलेक्ट्रॉन है उसको कोई भी स्क्रीन नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे इनर साइड जो कोई भी वहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो जो यहाँ पे स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो वहाँ पे कंप्लीटली जीरो है। लेकिन अगर मैं मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करूँ, अगर मैं मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम मीन्स जहाँ पे एक से ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 2 4 5 10 20 कितने भी हो सकते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है जो एनर्जी होती है ऑर्बिटल की सबकी डिफरेंट है। 1s हो गया, 2s हो गया, 2p 3p 3s 3p 4s, देन 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f। ये डिफरेंट ऑर्बिटल है। और जो एनर्जी है उनकी क्या कर रही है, डाउन टू टॉप वो क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। जैसे मैंने बात की थी जो डी ऑर्बिटल होती है जो उनकी एनर्जी होती है वो डिपेंड करती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर मैं 2p के लिए बात करूँ, एन की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 2 है, दिस वन इज द एन, एन से हम रिप्रेजेंट करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर फॉर पी के लिए अगर मैं बात करूँ, एल, एल की वैल्यू है यहाँ पे पी के लिए 1। और जो इलेक्ट्रॉन अगर मैं स्केडियम के लिए बात करूँ, स्केडियम में इलेक्ट्रॉन जाते हैं 3d ऑर्बिटल तक एंड इलेक्ट्रॉन आर आल्सो इन द 4s ऑर्बिटल। सो जो क्वांटम नंबर की वैल्यू वो डिफरेंट है। एंड थर्ड वन, जो ऑर्बिटल की जो एनर्जी होती है वो सिर्फ न्यूक्लियर चार्ज पे डिपेंड नहीं करती, साथ के साथ जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इनर सेल ऑर्बिटल में। अब मैं अगर स्केडियम के लिए बात करता हूँ, यहाँ पे स्केडियम का एटॉमिक नंबर है 21। उसमें इलेक्ट्रॉन क्या है, 3d में भी इलेक्ट्रॉन है एंड 4s में भी इलेक्ट्रॉन है। एंड 1s 2s 2p ये सभी क्या है, कंप्लीटली फील्ड है। सो जो इनर साइड इलेक्ट्रॉन होता है वो आउटर वैलेंस सेल के में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको स्क्रीन कर लेते हैं। जितना न्यूक्लियर का चार्ज जिस 3d ऑर्बिटल को फील होना चाहिए था वो उतना नहीं फील हो पाता। तो जो आउटर इलेक्ट्रॉन इज स्क्रीन्ड बाय द इनर इलेक्ट्रॉन, मीन्स जो आउटर साइड जो वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन है उसको जो इनर साइड के ऑर्बिटल है उसको स्क्रीन कर लेती हैं। और इसी को हम शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं। कि इनर सेल इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज द न्यूक्लियर अट्रैक्शन बिटवीन द आउटर वैलेंस मोस्ट इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस व्हिच इज टर्म्ड एज द शील्डिंग एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट। मीन्स क्या है कि जितना न्यूक्लियर का चार्ज या जितना न्यूक्लियस के पास चार्ज था वो आउटर वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन को फील होना चाहिए था, वो उतना नहीं हो पाता। क्योंकि जो इंटर वैलेंस जो इनर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसको क्या करते हैं, कुछ ही आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं, कुछ अट्रैक्ट करते हैं। तो उस वजह से क्या होता है कि जो ये उसको क्या कर लेते हैं, एज एक यहाँ पे शील्डिंग का काम कर लेते हैं। ये जो ये ऑर्बिटल है यहाँ पे शील्डिंग का काम करती हैं। और इसी शील्डिंग के बेसिस पे क्या होता है कि जो उनका वो डिस्टेंस, जैसे जैसे डिस्टेंस वेरी करता है जो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में जो एनर्जी है ऑर्बिटल की वो वेरी करती है। अगर हम स्क्रीनिंग इफेक्ट की बात करें, स्क्रीनिंग इफेक्ट का जो जनरली ऑर्डर रहता है वो एस ऑर्बिटल का सबसे ज़्यादा रहता है, देन पी, उसके बाद आती है हमारे पास डी ऑर्बिटल, देन आती है हमारे पास एफ ऑर्बिटल। अगर मैं एफ ऑर्बिटल की बात करूँ अभी यहाँ पे, अगर मैं एफ ऑर्बिटल की बात करूँ, एफ ऑर्बिटल क्या क्या है कि उसका जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो सबसे कम है। क्यों स्क्रीनिंग इफेक्ट एस ऑर्बिटल का कम है, क्योंकि जो इनर साइड में क्या है उसकी एस ऑर्बिटल पे पी ऑर्बिटल पे डी ऑर्बिटल है। जो एस ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल और जो डी ऑर्बिटल है, जितना न्यूक्लियस का चार्ज इस एस एफ ऑर्बिटल को फील होना चाहिए था वो उतना नहीं हो पाता। क्योंकि यहाँ पे इनमें जितनी भी ऑर्बिटल है एस पी डी एफ ऑर्बिटल सब में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है वो क्या करते हैं, इसको स्क्रीन कर लेते हैं। यहाँ पे कैसे शील्डिंग का काम करते हैं। तो जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है एफ इलेक्ट्रॉन का वो सबसे कम है, और शील्डिंग इफेक्ट भी सबसे कम है यहाँ पे एफ ऑर्बिटल का। जो इसका ऑर्डर रहता है जनरली जो स्क्रीनिंग एंड शील्डिंग इफेक्ट का वो सेम रहता है एस पी डी एफ, जैसे जैसे हम
मूव करते हैं s टू p2d ऑर्बिटल अगर हम बात करते हैं। अब आता है कि पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या है। पेनिट्रेशन इफेक्ट का मतलब क्या है कि जो ऑर्बिटल न्यूक्लियस के जितने ज़्यादा पास है, यहाँ पे क्या न्यूक्लियस का चार्ज है। अब न्यूक्लियस का जो चार्ज है, उसका जो चार्ज क्लाउड है, उसका एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है। जो न्यूक्लियस के पास जितना ऑर्बिटल रहेगी, वो उस जो उसका न्यूक्लियस का चार्ज क्लाउड है, उसको उतनी ज़्यादा पेनिट्रेट करेगी। सपोज करो अगर मैं वैसे आपको वैसे बताऊं, सपोज करो एस की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ तक है, और जो न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो यहाँ तक है। तो ये दोनों एक ऑर्बिटल क्या कर रहे हैं, जो दोनों चार्ज एक दूसरे को पेनिट्रेट कर रहे हैं, इसका पेनिट्रेशन पावर सबसे ज़्यादा है। एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, और न्यूक्लियस के पास क्या पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो अट्रैक्ट करने से क्या होता है कि इसकी अट्रैक्शन न्यूक्लियस के साथ सबसे ज़्यादा है, हाईली अट्रैक्शन है और हाईली पेनिट्रेटिंग पावर है। पी की उससे कहीं कम है, डी की उसके थोड़ी कम है, डी एफ की उससे भी कम है। और एफ ऑर्बिटल की हमने लिस्ट पेनिट्रेटिंग एंड लिस्ट अट्रैक्शन इसलिए दिखाया गया है क्योंकि ये न्यूक्लियस से बहुत ज़्यादा है। और जो पेनिट्रेशन पावर का अगर मैं ऑर्डर की बात करूँ, उसका भी ऑर्डर सेम है, एस ऑर्बिटल, देन पी, देन डी, एंड देन एफ। ये इसका यहाँ पे ऑर्डर की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे ये इसका ऑर्डर रहेगा, सेम स्क्रीनिंग इफेक्ट का ऑर्डर रहेगा, सेम शील्डिंग इफेक्ट का ऑर्डर रहेगा। अगर मैं पेनिट्रेशन की बात करता हूँ, जो उसको मैं रेडियल प्रोबेबिलिटी कर्व से बताता हूँ कि रेडियल प्रोबेबिलिटी कर्व क्या दिखाती है, हमें इलेक्ट्रॉन की दिखाती है कि हमें इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है 3D और 4s ऑर्बिटल में। पेनिट्रेशन पावर क्या है, 4s ऑर्बिटल की सबसे ज़्यादा है, इसलिए जो 4s ऑर्बिटल है वो न्यूक्लियस के यहाँ से स्टार्ट हो रही है, इसकी पेनिट्रेशन पावर क्या है, सबसे ज़्यादा है। एंड 3D ऑर्बिटल क्या हो रही है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, दिस वन, सॉरी, दिस वन। The 4s orbital is very large so that it is attracted more by the nucleus। जो 4s orbital है वो ज़्यादा लार्ज है, इसके अगर हम बात करें, इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा फैली हुई है, तो वो जो अट्रैक्शन रहता है न्यूक्लियस का वो ज़्यादा रहता है। न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा तो उसकी पेनिट्रेटिंग पावर भी क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी अगर हम 3D ऑर्बिटल के कंपैरिजन में अगर मैं बात करूँ। इसलिए जो यहाँ पे एस ऑर्बिटल है, दिस वन इज एस, दिस वन इज पी, दिस वन इज 3D, दिस वन इज 4s। जो 4s ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, उसलिए इसको ज़्यादा इस तरह से दिखाया गया है कि वो इनवर्ड साइड ज़्यादा अट्रैक्टेड है, मोर अट्रैक्शन है। और जो 3D ऑर्बिटल का अट्रैक्शन क्या है, वो लेस है। अगर 3D ऑर्बिटल का अट्रैक्शन होता तो वो इस तरह से मूव होती है यहाँ पे, लेकिन वो क्या है कि वो इस तरह से नहीं है, क्योंकि 3D ऑर्बिटल का अट्रैक्शन इतना ज़्यादा नहीं है। तो इसलिए हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जो रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से भी अगर हम इसको अंडरस्टैंड करना चाहें, तो जो हमारे पास 4s ऑर्बिटल है उसका पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू 3D ऑर्बिटल की अगर हम बात करें। दिस इज द ऑर्डर ऑफ डिफरेंट पेनिट्रेशन पावर ऑफ एस पी डी एफ ऑर्बिटल। डिफरेंट सबसेल हैव डिफरेंट पेनिट्रेशन पावर, ऑर्बिटल विच पेनिट्रेट मोर टू द न्यूक्लियस विल बी लेस शील्डेड। जो ऑर्बिटल न्यूक्लियस के ज़्यादा पास होगी वो सबसे लेस शील्डेड रहेगी, क्योंकि वो तो न्यूक्लियस के बिल्कुल ही पास होगी, उसका तो कोई शील्डिंग इफेक्ट वहाँ पे होगा ही नहीं। These are different orbitals, 1s, 2s, 2p. These are all arranged in order of their increasing energy। 1s की एनर्जी सबसे कम है, then 2s, then 2p, 3s, 3p, 4s। और जो हम इलेक्ट्रॉन को फील करते हैं ऑर्बिटल में, हम इलेक्ट्रॉन को भी इसी ऑर्डर में फील करते हैं। सबसे पहले 1s, then 2s, then 2p, then 3s, 3p, then 4s, then 3d, then 4p, then 5s, 5p, then sorry 4d, then 5p, then 6s, after 6s 4f, then 5d, then 6p, then 7. This is the order of filling of electrons for any elements in the periodic table and their electronic configuration। This subcell of a particular cell does not have any equal energy। हम ये पता है कि किसी भी सबसे हाइड्रोजन को छोड़ के किसी भी सबसे अगर हम एलिमेंट के लिए बात करें, जो एनर्जी है जो वेरियस सबसेल की वो सेम नहीं है, सभी के लिए वो डिफरेंट है। इन ए पर्टिकुलर सेल दिस सबसेल दैट होल्ड द लोअर वैल्यू ऑफ एल हैज लोअर एनर्जी। अब यहाँ पे पी के लिए एल की वैल्यू क्या है, 1 है, तो इसकी एनर्जी कम है, और एन के लिए 3 के लिए ज़्यादा है, तो उसकी एनर्जी क्या वहाँ पे ज़्यादा है। फॉर द सेम वैल्यू ऑफ एन द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी ऑफ द एस एंड पी सबसेल और स्मॉल, वेरेज पी एंड डी सबसेल इट इज लार्ज एंड सो ऑन। सेम वैल्यू ऑफ एन, अगर हम सेम वैल्यू ऑफ एन की बात करते हैं, द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी ऑफ द एस एंड पी ऑर्बिटल, एस और पी ऑर्बिटल के बीच में एनर्जी क्या कम है, वेरेज द बिटवीन पी एंड डी सबसेल। लेकिन अगर हम पी और डी सबसेल के लिए बात करें, तो जो एनर्जी का डिफरेंस है वो क्या है, वहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे जो एनर्जी का डिफरेंस है वो कम है। विद द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन द सबसेल ऑफ द लोअर सेल में हैव हायर एनर्जी। जैसे जैसे एस की एन की वैल्यू इंक्रीज करेगी, सॉरी जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन की वैल्यू इंक्रीज करेगी, द लोअर सेल में हैव हायर एनर्जी। तो लोअर सेल है, सो जैसे दिस वन इज द 5s, उसकी एनर्जी क्या होगी वहाँ पे
ज़्यादा होगी, हायर सेल विच मीन्स 3D हैज हायर एनर्जी देन दैट ऑफ 4s, मीन्स क्या वहाँ पे जो 3D सेल है उसकी एनर्जी क्या है वहाँ पे ज़्यादा है एज कम्पेयर टू 4s सब सेल की अगर हम बात करते हैं। कुछ फैक्टर्स होते हैं जो उसकी एनर्जी को, ऑर्बिटल्स की एनर्जी को अफेक्ट करते हैं। जैसे एस ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन विल बी मोर टाइटली बाउंड टू द न्यूक्लियस एज कम्पेयर टू द पी ऑर्बिटल, क्योंकि जो एस ऑर्बिटल रहती है, अगर मेरे पास सॉरी अगर मेरे पास ये न्यूक्लियस है और यहाँ पे एस ऑर्बिटल है, देन पी ऑर्बिटल, या अगर मैं इसको ऐसे बनाता हूँ, देन दिस वन इज द पी ऑर्बिटल, देन दिस वन इज द डी ऑर्बिटल। जो एस ऑर्बिटल है वो न्यूक्लियस के पास ज़्यादा पास है तो टाइटली बाउंड रहती है। देन पी ऑर्बिटल विच इज मोर टाइटली बाउंड, पी ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल से भी ज़्यादा टाइटली बाउंड है। ऐसे जैसे जैसे उसका जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ेगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी, एनर्जी की, वो चेंज होगी। एज कम्पेयर टू द पी ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन विल हैव मोर नेगेटिव और लेसर अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये न्यूक्लियस के ज़्यादा पास रहते हैं तो ये ज़्यादा स्टेबलाइज होते हैं और जो इनकी एनर्जी होती है वो कम होती है एज कम्पेयर टू पी ऑर्बिटल में अगर मैं बात करता हूँ। As the extent of the shielding from the nucleus is different for the electron in different orbital, जो shielding इफेक्ट रहता है डिफरेंट इलेक्ट्रॉन का इन डिफरेंट ऑर्बिटल में वो डिफरेंट रहता है, और जो जनरली जो उसकी वैल्यू वेरी करती है वो एन प्लस एन और एल पे डिपेंड करती है। जो लोअर वैल्यू होती है एन एल, सो दिस वन इज द एल, एन और एल के लिए जो वैल्यू होती है, अगर उसकी वैल्यू की जो लोअर वैल्यू है तो उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी, मीन्स एन प्लस एल। एन इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एल इज द एजीमुथ ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा तो जो उसका जेड इफेक्टिव वो भी इंक्रीज करेगा, और जेड इफेक्टिव इंक्रीज करेगा तो जो उसकी ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो जो सेम सब सेल के लिए वो डिक्रीज करेगी विद द इंक्रीज। मीन्स हम कह सकते हैं जैसे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो जो ऑर्बिटल की एनर्जी है वो वहाँ पे डिक्रीज करेगी। अगर हम शील्डिंग और पेनिट्रेशन इफेक्ट की मैं अगर मैं बात करता हूँ, अगर मैं इसको मैं डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करने की बात करें तो ये मेरे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पे +3 चार्ज है, ठीक है। अगर मैं कह सकता हूँ हाइड्रोजन, बेरिलियम, लिथियम, लिथियम के अगर मैं केस की बात करूँ वहाँ पे +3 चार्ज है। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे इसके इनर साइड है और जो 1 इलेक्ट्रॉन है उसकी आउटर वैलेंस सेल में है। सो जो ये 1 इलेक्ट्रॉन है +3, 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये सिर्फ इसको एक ही चार्ज फील होगा +1, ये +1 चार्ज को फील कर सकता है, क्योंकि इन दोनों इलेक्ट्रॉन ने क्या होगा कि न्यूक्लियस वैसे तो क्या करता है, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं होते तो ये ओवर के जितना भी +3 चार्ज है उसको फील करता है। लेकिन अब क्या है कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या होगा, ये इसको साथ अट्रैक्शन करेंगे तो अट्रैक्शन करने से सिर्फ +1 चार्ज ही फील कर पाएगा। लेकिन पेनिट्रेशन में क्या है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन इनर साइड चला जाता है तब ये पूरा चार्ज फील करेगा, क्योंकि ये तीनों क्या हो गए, इनर साइड हो गए। तो ये इसको क्या करेगा, पेनिट्रेशन को, ये न्यूक्लियस के सबसे पास चला गया तो सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन पावर होगी, तो ये पूरा जो न्यूक्लियस का जितना चार्ज है उसको +3 चार्ज है उसको फील करेगा। सो दिस वन इज द शील्डिंग इफेक्ट एंड दिस वन इज द पेनिट्रेशन इफेक्ट, दीज आर टू डिफरेंट इफेक्ट्स। अब आते हैं इलेक्ट्रॉन को फील करने की बात आती है कि हम इलेक्ट्रॉन को कैसे ऐड करते हैं। कि जब हमने पी ब्लॉक तक हमने इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया, उसके बाद आती आती हमारे पास जब हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं कि हम इलेक्ट्रॉन को कैसे ऐड करते हैं, जो हमारे पास डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैं, हमारे पास जो डिफरेंट ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन को हम कैसे ऐड करते हैं। हमारे पास 2 ऑर्बिटल होती है, जब हम 18 तक इलेक्ट्रॉन यूज को कर लेते हैं, 8 8 16 + 2 18 आर्गन के बाद जब हमें इलेक्ट्रॉन को ऐड करना पड़ता है, जब हम ऑर्गन के बाद इलेक्ट्रॉन को किसी ऑर्बिटल में ऐड करते हैं तो हम वहाँ पे कैसे ये कंसीडर करेंगे कि हमें जो इलेक्ट्रॉन जाएगा वो किस ऑर्बिटल में जाके ऐड होगा, वो 3D में होगा या 4s में होगा, उसको हम कैसे पता करते हैं। जो जनरली एंट्रिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है जितने ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी। अगर ऑर्बिटल की एनर्जी कम है तो जो इलेक्ट्रॉन होगा उसमें वो सबसे पहले ऐड होगा, उसके बाद जो होगा नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन में ऐड करते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि जैसे हमारे पास दिस वन इज द 18, पोटेशियम की अगर मैं बात करता हूँ, पोटेशियम और कैल्शियम हमारे पास 2 एलिमेंट होते हैं। पोटेशियम और अगर मैं कैल्शियम की बात करता हूँ तो उस केस में क्या हमारे पास पोटेशियम इज आई थिंक 19 एंड पोटेशियम इज 19 एंड कैल्शियम इज 20, पोटेशियम इज 90 एंड कैल्शियम इज 20। जो एंट्रिंग होती है वो इलेक्ट्रॉन की किस में ऐड होगी, सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन आता है जनरली 4s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, क्योंकि जो
4s ऑर्बिटल का पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा है, पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा है तो मीन इसकी एनर्जी क्या कम है, इसलिए जो 4s ऑर्बिटल का पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होने की वजह से जो पहले इलेक्ट्रॉन ऐड होता है वो 4s1 में होता है ऐड पोटेशियम के लिए, एंड देन इलेक्ट्रॉन होता है कैल्शियम के लिए 4s2 में। दीज आर टू डिफरेंट ऑर्बिटल्स। सो जो इलेक्ट्रॉन होता है जनरली वो हमें ऑर्बिटल की एनर्जी के बेसिस पे हमें ऐड करना पड़ता है, जितनी ज़्यादा उसकी पेनिट्रेशन पावर मीन्स उसकी जो एनर्जी रहेगी वो उतनी कम रहेगी। उसके बाद हम बात करते हैं स्कैडियम। स्कैडियम इज द 21। जब 4s ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड हो जाती है, जब 4s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाते हैं तो 4s ऑर्बिटल वहाँ पे कंप्लीटली फिल्ड होगी, तो उसमें क्या होता है कि उसका जो न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाता है वो +2 यूनिट तक इंक्रीज हो जाता है। जब उसका न्यूक्लियर चार्ज +2 यूनिट इंक्रीज हो जाएगा तो जो एनर्जी होगी 3d ऑर्बिटल की वो कम हो जाती है। तो उस केस में क्या होगा कि 3d ऑर्बिटल की एनर्जी क्या हो जाएगी, वहाँ पे फॉल हो जाएगी, कम हो जाएगी। देन द एनर्जी ऑफ द 4p ऑर्बिटल, 4p ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा रहेगी, लेकिन जो 3d ऑर्बिटल की एनर्जी क्या हो जाएगी वो कम हो जाएगी। और जब 3d ऑर्बिटल की एनर्जी कम हो जाएगी तो जो 4s ऑर्बिटल को कंप्लीटली फिल करने के बाद जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन की एंट्री होती है 3d1 में, ना कि 4p में। जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन की एंट्री होगी वो 3d ऑर्बिटल में एंट्री होगी, ना कि 4p ऑर्बिटल में, क्योंकि जब 4s ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड होगी तो जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है इलेक्ट्रॉन का 4p ऑर्बिटल पे वो ज़्यादा पड़ेगा, और उसको स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा पड़ेगा तो जो न्यूक्लियस और इसके बीच में अट्रैक्शन क्या होगा वो कम होगा। अट्रैक्शन कम होगा तो जो उसकी एनर्जी क्या रहेगी वो वहाँ पे कम हो जाएगी। उसके बाद जो स्कैडियम के बाद जितने भी हमारे पास एलिमेंट होते हैं, स्कैडियम, स्कैडियम के बाद टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो प्रोग्रेसिवली एक एक ऑर्बिटल में ऐड होता रहता है। 3d10 तक कंप्लीटली ऐड होगा। 3d10 में जिंक 4s2, 3d10 दिस इज 4 जिंक। जब ये 3d ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगी तो उस केस में क्या होगा, जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो 4p ऑर्बिटल में आएगा। तब इसके केस में जो न्यूक्लियस और जो 4p ऑर्बिटल है उसके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है तब वो इंक्रीज होगी, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे वो कंप्लीटली फिल्ड हो जाएंगे। तो उस केस में जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन होगा, अगर हम 30 एलिमेंट की बात करें, जो 31 जो हमारे पास एलिमेंट होगा जो उसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा वो 4p ऑर्बिटल में ऐड होगा। ये एक हमारे पास मेमोरी एड हम बात कर सकते हैं। मेमोरी एड मीन्स ये एक एनर्जी को मैंने रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ पे, कि जो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 4s में, देन 2s, 2p, 3s, 3p, 3p के बाद आता है 4s, देन 3d, 3d के बाद आता है 4p, देन 4d, 4d के बाद आता है यहाँ पे 5p, 5s, देन 5p, देन 5d, देन 4f। जो ये अपर साइड दिखाया गया मीन्स इनकी एनर्जी ज़्यादा है, और जो ये डाउनवर्ड दिखाई गई इनकी एनर्जी कम है। ये मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए हमारे पास एक हम कह सकते हैं एक मेथड है याद करने का, कि हमें जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे फील करने हैं। जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, मैंने पहले डेफिनेशन में बताया था कि ns में 1 से 0, 1, 2 कुछ भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। डी ऑर्बिटल में 1 to 10 होते हैं। स्कैडियम के लिए 3d1 4s2, 3d2 4s2, 3d3 4s2, and this one is the exceptional 3d5 4s1 because half-filled orbitals have generally most stable electronic configuration. This one is 3d5 4s2, this one is the 3d6 4s2, and this one is the 3d7 4s2, and this one is the 3d8 4s2, and this one is the 3d10 4s1, and this one is the 3d10 4s2। बिकॉज वैसे अगर हम बात करें नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इसकी होनी चाहिए 3d9 4s2, लेकिन क्या है कि अगर 4s2 में से एक इलेक्ट्रॉन 3d9 में चला जाता है तो जो ऑर्बिटल है वो ज़्यादा स्टेबल हो जाती है, और हमें पता है कि जो कोई भी ऑर्बिटल रहेगी वो हाईली स्टेबलाइज फॉर्म में रहना प्रेफर करेगी। क्रोमियम के केस में 3d5 4s1 एंड कॉपर इज द 3d10 4s1। ये हमारे लिए, मैं अगर सेकंड ट्रांजिशन सीरीज और 4D ट्रांजिशन सीरीज के जो हमारे पास एलिमेंट है उनके लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का ऑर्डर इस तरह से रहेगा। और जो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है हाफ फील्ड और फुली फील्ड ऑर्बिटल की, उसकी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के लिए जनरली कुछ, क्योंकि एक तो वहाँ पे एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी में कहते हैं कि जो एक्सचेंज होता है इलेक्ट्रॉन का वो ज़्यादा रहता है। एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन का अगर ज़्यादा रहेगा ऑर्बिटल्स में तो जो उसकी एनर्जी होती है ऑर्बिटल की वो कम रहती है, और ऑर्बिटल की एनर्जी कम रहेगी तो मीन्स वो ज़्यादा स्टेबलाइज होती है। दिस वन फॉर थर्ड ट्रांजिशन,
sorry, this one is for 5D. This is the 5D transition series, or we can say that this is the third transition series. जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए यही है कि जो n-1 दिस इज पेनल्टीमेट सेल एंड दिस वन इज द बैलेंस सेल। उसके लिए हमारे पास बहुत से फैक्टर काम करते हैं जब हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं। कहीं केसेस में क्या होता है कि हमारे पास जो ऑर्बिटल की हम एनर्जी के बेसिस पे बात करते हैं कि किसकी एनर्जी कम है, किसकी एनर्जी ज़्यादा है, लेकिन एनर्जी को कंक्लूड करने के लिए हमारे पास एक ही मेथड नहीं है। उसके लिए हमारे पास न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन होता है कि जो न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में क्या अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन क्या है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन अट्रैक्शन तो होगा ही नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, दूसरे इलेक्ट्रॉन पे भी नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे। एंड शील्डिंग इफेक्ट ऑफ वन इलेक्ट्रॉन बाय द अदर्स, कि जो वन इलेक्ट्रॉन है, जो इनर साइड इलेक्ट्रॉन है, वो दूसरे इलेक्ट्रॉन को कितना शील्ड कर रहा है। एंड थर्ड वन लास्ट वन इज द एक्सचेंज फोर्सेज। इसमें एक्सचेंज फोर्सेज भी काम करती हैं कि जो हमारे पास एक्सचेंज फोर्सेज है वो किस तरह से है। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज रहेगा तो जो उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की जो पॉसिबिलिटी रहेगी वो मैक्सिमम रहेगी, क्योंकि जो उस ऑर्बिटल की एनर्जी क्या वहाँ पे वो डाउन हो जाएगी। अगर हम बात करें जो अभी हमने पीछे देखे हैं कि हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट वन इज द न्यूक्लियस अट्रैक्टिव फोर्सेस। क्या है कि न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन के साथ अट्रैक्शन क्या है, ओके। एंड इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन क्या है, इन दोनों के बीच में रिपल्सन क्या है, दिस वन इज फॉर अट्रैक्शन, इनके बीच में रिपल्सन क्या है। और जो एक्सचेंज फोर्सेस क्या है, ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से एक्सचेंज होते हैं, यहाँ से एक्सचेंज होता है, तो इसके बीच में एक्सचेंज फोर्सेस क्या है। और लास्ट वन और एक फैक्टर क्या हमारे यहाँ पे, जो ये इलेक्ट्रॉन है ये इस इलेक्ट्रॉन को कितना स्क्रीन कर रहा है। जो वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसको जो इनर साइड में जो इलेक्ट्रॉन है वो कितना स्क्रीन कर रहे हैं। तो ये सभी फोर्सेस, ये सभी फैक्टर्स काम करते हैं, और इन्हीं फैक्टर के बेसिस पे हम जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है उसको फील करते हैं। ये सारे फैक्टर काम करते हैं कि कोई कहीं पे एक्सेप्शनल बिहेवियर इसीलिए आता है कि जो फैक्टर होते हैं इनको हम वैसे नहीं कंसीडर कर सकते। हम थ्योरेटिकली अगर मैं बात करूँ, हाइपोथेटिकली, वैसे हम इनको नहीं कंसीडर करते। इनका एक्सपेरिमेंटली पता चलता है कि कहाँ पे कोई फैक्टर किस तरह से काम कर रहा है। एनर्जी ऑफ 4s एंड 3D ऑर्बिटल को अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे क्या है, मेरे पास जो 3D ऑर्बिटल है इसके बीच में जितना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, ये अट्रैक्शन होने की वजह से क्या है कि जो ये ऑर्बिटल है इनर साइड श्रिंक हो गई है, और यहाँ पे अट्रैक्शन कम नहीं है तो ये आउटर साइड में श्रिंक हो गई है। ये वैसे इस तरह से होनी चाहिए थी। एक है इनर साइड श्रिंक होगी और ये यहाँ पे आउटर साइड श्रिंक होगी। सॉरी, ये इस तरह से नहीं होगी, ये यहाँ पे इस तरह से होगी। मैं इरेज कर रहा हूँ, जो वहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है, ये इस तरह से नहीं होगी। यहाँ पे मोर अट्रैक्शन है और यहाँ पे ऑर्बिटल विदाउट इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे लेस अट्रैक्शन है। एनर्जी ऑफ द 4s ऑर्बिटल, 4s ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी, और जो 3D ऑर्बिटल की एनर्जी रहेगी वो वहाँ पे ज़्यादा रहेगी। अब यहाँ पे मेरे पास 3D ऑर्बिटल, दिस वन इज द 4s एनर्जी की जो हम बात कर रहे थे पिछले उसमें, यहाँ पे क्या है कि 3D ऑर्बिटल के बीच में क्या, ऑर्बिटल का ऑर्बिटल के साथ, ऑर्बिटल विद इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटल क्या कंप्लीटली फिल्ड है। लेस अट्रैक्शन, जब 4s ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड हो जाती है तो उस केस में जो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, वहाँ पे ज़्यादा हो जाएगी, और जो 3D ऑर्बिटल की एनर्जी क्या वहाँ पे कम हो जाएगी। एनर्जी कम होगी तो जो 3D ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी, तो जो हमारे पास कैल्शियम के बाद जो हमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना है वो स्कैडियम में, तो वो 3D ऑर्बिटल में जाएगा, ना कि 4s ऑर्बिटल में। ये उसी चीज़ को रिप्रेजेंट किया गया है। उसके बाद हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज रहती हैं, जनरली हम ट्रांजिशन एलिमेंट की बात करते हैं, हैव लार्ज चार्ज रेडियस रेशो, कि जो इसकी चार्ज टू रेडियस रेशो होती है वो बहुत ज़्यादा है। हार्ड है, मेटल्स है जनरली सारी हार्ड से हैव, हार्ड है तो उनकी डेंसिटी भी ज़्यादा रहती है। मेटल्स है तो हाई डेंस मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी सभी का जाता है। जनरली जो कंपाउंड है उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं, जो जो हमारे पास कंपाउंड होते हैं उसके, वो पैरामैग्नेटिक रहता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। जनरली ये +2 अगर मैं बात करूँ, ये +2 से +2 और +3 तो ऑलमोस्ट सभी जो हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट है सभी शो करते हैं। जो ओस्मियम क्या होता है, ओस्मियम क्या हमारे पास +8 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ओस्मियम की सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है +8। पैरामैग्नेटिक है, कुछ कलर्ड भी है कॉम्प्लेक्स इसका, जो हमारे पास इसमें कॉम्प्लेक्स बनते हैं उनका कुछ ना कुछ कलर भी होता है।
कंपाउंड बनाते हैं, कंपाउंड बनाने के साथ कैटालिटिक एक्टिविटी है। मैंने पहले भी कहा था कि जो हमारे पास इसमें कुछ कॉम्प्लेक्स है उनकी अच्छी कैटालिटिक एक्टिविटी है, उनको हम कैटलिस्ट की तरह यूज करते हैं। जो कॉम्प्लेक्स होते हैं